Welcome students. Our new chapter is chapter number 5, Principle of Inheritance and Variations. In this chapter, we are going to deal with the inheritance, variation, what we can say genetics. जिस चैप्टर को हमने 10th क्लास में पढ़ा था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसका ही ये थोड़ा सा एलेबोरेटेड फॉर्म है और इसके अंदर हम लोग वेरियस टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं विच आर इंक्लूडेड इन द इनहेरिटेंस. So what is inheritance? First we deal with the definition. Transfer of characters from parent to offspring is called inheritance. One gene is responsible for the expressing different characters or number of genes express one character. Gene are the basic unit of inheritance. So here the term gene is given. Gene means what? It is the controlling unit of the character. Gene. It can control more than one character or more than one character can be controlled by the gene. So this is the inheritance. I show you some examples here with the help of picture. See, these are phenotypic characteristics. One of our student prepared the investigative project in the 11th class on this one. So genetics, the branch of biology which deals with the study of inheritance and variation of the characters from parent to offspring, is called genetics. So genetics is including the gene. Here it includes the gene. So all the topics which include in this chapter, they are revolve around the gene. Inheritance and variation, in the science in which we study about this one, that is called genetics. Mendel was the first person to study genetics. Why he is called father of genetics? This already we studied in the 10th class. There are 1 mark questions asked about heredity, variation. So what is heredity? Transfer of characters from one parent to their offspring is called heredity. अनुवांशिकता हिंदी में कहते हैं. Inheritance is the basis of heredity. The difference between the characters or trait among the individual of the same species is called variation. एक ही स्पीसीज के अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. इट मे लीड टू इवोल्यूशन, मीन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. आई विल शो यू सम पिक्चर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज. सी, this picture is given in the 10th class NCERT book, Beetle's example. See the variation. So first we talk about Mendel's law of inheritance. Mendel performed his experiment on the garden pea, Pisum sativum, due to following reason. ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. So again important question. Why Mendel selected the pea plant for his experiment? Flower of the pea are hermaphrodite, bisexual. First point. Flower are capable of self-fertilizing, which can help to obtain constant trait. Self pollination भी इसमें हो सकता है, इसलिए constant trait यानी एक ही trait को लगातार हम लोग इसमें ले सकते हैं. मेंडल ने ले सकते थे, इसलिए इसको चुना. क्रॉस पॉलिनेशन कैन ऑल्सो बी अचीव्ड इजीली, क्योंकि बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल गेमेट दोनों मौजूद है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन आराम से हो सकता है. इजी हाइब्रिडाइजेशन,
क्रॉस ब्रीडिंग आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो ये भी बहुत आसानी से इसमें किया जा सकता है। प्लांट इजी टू कल्टीवेट, इनको आसानी से उगाया जा सकता है कहीं पे भी, छोटी सी जगह पे। इट इज़ एनुअल है, एक सीज़न ही इनको चाहिए रहता है उगने के लिए, तो ज़्यादा समय तक वेट नहीं करना पड़ता है। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर सीन, इसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो मेंडल की सफलता का राज थे। So this is the reason why Mendel chose the pea plant. These are the 7 pair of contrasting trait in the pea plant. This already given in the NCERT book of 10th class, so we can skip this one. Tall and dwarf plant stem height, capital T, small t, round wrinkled seed, yellow green seed color, green and yellow pod color, inflated and constricted pod shape, axial and terminal flower, violet or purple and white flower color. So these are the 7 traits. Again, in this one, dominant trait and recessive traits are given between the 7 contrasting characteristics. So you have to remember the dominant trait and recessive trait. For example, round wrinkled, so we have to remember that which one is the dominant one and which one is the recessive. What is dominant and what is recessive, we already discussed this one in the 10th class. Those characteristics we shown in the F1 generation, they are dominant. तो हमें ये सारी मालूम होना चाहिए कि डोमिनेंट कौन सा है और रिंकल जो रेसेसिव है वो कौन सा है। तो हम लोग इसके बेसिस पे जितनी भी क्रॉस आती है क्वेश्चंस के अंदर बोर्ड में, उसको आसानी से क्रॉस को बना सकते हैं। See again this table given in the NCERT book. True breeding, it means having undergone continuous self-pollination. It shows stable trait inheritance and express the same characters for several generations. Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties. Example, capital T, true breeding tall plants, small t, true breeding dwarf plant. So here one more term which is called pure line. This is asked in the previous board examination. Pure line, you also heard about this term, pure line, that is actually true breeding. हमने जो टर्म पढ़ी है इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक्चुअल में प्योर लाइन बनाने वाला ही होता है। यानी कि हम अगर कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन करते जाएं किसी प्लांट को, तो उसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। यानी कि वो एक समय में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है जो सिर्फ और सिर्फ प्योर हो, उसमें इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल चली जाती है, उसको कहते हैं प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग। तो मेंडल ने जो 14 ट्रेड्स ली है, वैराइटीज़ जो ली है, जैसे जैसे हाइट के लिए टॉल और ड्वार्फ है, तो उसने जो टॉलनेस लिया है कैपिटल टी, ये प्योर ब्रीडिंग है। यानी इसके अंदर मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिल्कुल भी। सो इट इज़ कॉल्ड प्योर ब्रीडिंग, प्योर लाइन, ट्रू ब्रीडिंग। ड्वार्फ लिया है तो ये भी मिक्सिंग नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस होगा, ना कि कोई मिक्सिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ट्रेट यहाँ पे शो होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर प्योर लाइन, ट्रू ब्रीडिंग। So first topic we have to deal with the monohybrid cross, inheritance of one gene. There are two topics: inheritance of one gene, inheritance of two gene. When we talk about inheritance of one gene, it is called monohybrid cross. This is the cross in which one pair of trait is considered and crossed together. One pair of trait, clear?
पेयर ऑफ ट्रेट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हाइट इज ए वन पेयर, सो ट्रेट आर टॉल एंड ड्वार्फ। तो टॉल और ड्वार्फ के बीच में अगर क्रॉस होती है दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Mendel found that all the 7 traits tested exhibited only one of the trait in the F1 generation. Expressed trait was termed as dominant and hidden trait was termed as recessive. Again, a tall plant and short pea plant, if we cross between that one, then see the cross short pea plant and here short pea plant, it is small t, tall pea plant, capital T. So this is parent. आपको जब क्रॉस बनानी इसी तरह से बनानी है, यहाँ मेल फीमेल भी लिखना पड़ेगा आपको, तो मेल फीमेल के सिंबल बनाने पड़ेंगे। 10th में आपने बनाए, ध्यान रखिएगा कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, क्रॉस का साइन बीच में होना चाहिए। शॉर्ट प्लांट और टॉल प्लांट में जब क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन मिलती है। F मीन्स फीलियल इज यूज्ड फॉर प्लांट्स, सो F1 फर्स्ट जनरेशन। यानी जब हम किसी सीड को उगाते हैं, सीड को उगाने के बाद में उससे जो पौधे ग्रो होते हैं दैट मे बी शॉर्ट, दैट मे बी टॉल। तो जो पौधे ग्रो हुए हैं वो ग्रो हुए पौधे में एक में से हम लोग एंथर यूज करेंगे, एक में से हम लोग एग यूज करेंगे। क्लियर? सो हियर इफ इट इज़ फीमेल, इट इज़ मेल। सो इस प्लांट में से हमने क्या किया, एंथर्स को हटा दिया, रिमूवल ऑफ एंथर, इमास्कुलेशन कर दिया था। तो इस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट ही बचा हुआ है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो टॉल है ये मेल फ्लावर है, मेल प्लांट लिया हमने, यहाँ से पोलन ग्रेन लेके और हमें इस प्लांट पे, फीमेल प्लांट पे स्प्रेड करना है स्टिग्मा के ऊपर। क्लियर? स्टिग्मा पे जब स्प्रेड करेंगे और उसके बाद में इस जो फीमेल प्लांट है इसमें एक सेकंड प्रोसेस होगी बैगिंग। उस फ्लावर को जिसके अंदर हमने पोलन ग्रेन जो यहाँ से लिए थे ये स्प्रेड किए हैं, यहाँ से इसमें कर देंगे बैगिंग। पॉलीथीन की बैग से उस फ्लावर को ढक देंगे ताकि उसमें दूसरे पोलन ग्रेन आके क्रॉस नहीं कर दें। फिर इसका हम वेट करेंगे, ये प्लांट ग्रो होगा और इससे फ्रूट बनेगा, मटर बनेंगे। उस मटर के बीज से the seeds which are obtained from this plant, they are again sown in the soil। उसको फिर से हम लोग उगाएंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी F1 जनरेशन, इसको F1 जनरेशन कहते हैं। तो ये सारे दिखने में टॉल दिखेंगे। क्लियर? फिनोटिपिक कैरेक्टर इज टॉल, कैपिटल T स्मॉल t, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन इज कैपिटल T स्मॉल t। सो मेंडल ने जब देखा कि ये सारे के सारे कैपिटल T और स्मॉल t मिल रहे हैं तो उन्होंने ये कोशिश करी कि स्मॉल t जो थे ड्वार्फ कहाँ गए इसमें से, क्योंकि एक प्लांट तो पेरेंट तो इसमें ड्वार्फ था, तो ड्वार्फ यहाँ पे क्यों नहीं आया है, ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आ गया पहले ही। तो उन्होंने क्या किया, ये जो F1 प्लांट्स थे, इन F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, क्योंकि बाइसेक्सुअल है सारे, हमें मालूम है मेल और फीमेल गैमेट दोनों मौजूद हैं इनके अंदर। तो उन्होंने इनको सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। क्या होने दिया? सेल्फ पॉलिनेशन। ये देखिए यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल है, बट इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन में यानी हम क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन जैसे ही होने दिया तो नई इसमें जो ये मटर लगे सेल्फ पॉलिनेशन के बाद में इनको फिर से उगाया
तो हमें रिजल्ट मिला 3:1 रेशो। ये हम 10th में पढ़ चुके हैं। 3 आर टॉल, 1 इज ड्वार्फ, 3:1 रेशो। तो ये जो लिखने वाला कैरेक्टर है दिट इज कॉल्ड फिनोटिपिक कैरेक्टर। सो यहाँ फिनोटिपिक रेशो क्या रहेगा 3:1, बट इन जेनेटिक फॉर्मेशन इट इज़ नॉट 3:1। इसको इस तरह से मेंशन करेंगे हम लोग। इफ वी टॉक अबाउट जीनोटिपिक कैरेक्टर दैट इज 1:2:1। 1 क्या यहाँ पे प्योर टॉल, 2 क्या यहाँ पे इम्प्योर टॉल या हाइब्रिड टॉल, और 1 क्या है प्योर ड्वार्फ। इस तरह से ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जीनोटिपिक कैरेक्टर दिखाता है। जीनोटाइप रेशो क्या हो गया 1:2:1। फिनोटिपिक रेशो हो गया 3:1। तो क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो क्या होता है, तो आप लोग इससे बता सकते हैं।